Yes, good afternoon to all of you students. Myself Vijay Singh, I'm your science teacher. Today we are discussing the topic coal and petroleum from your science book. This is chapter number 5, and in the previous sessions we have seen the introduction of the chapter, and we have seen that how the coal is formed. Coal is a fossil fuel, and it is formed from the dead and decaying dead remains of the plants which are dead millions of years ago. The carbon present in their body is converted into the coal, and when their body is buried deep and deep under the soil, under the layer of the soil, due to the huge temperature, due to the high temperature and huge pressure below the layers of the soil, the carbon present in the bodies of the dead plant जो body है उनकी body में जो carbon है convert into the coal. We have discussed that point, and we have also seen what is the meaning of coke का क्या meaning होता है. Coke is a byproduct of a coal. कोल से बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है, और if you heat the coal for a long duration of time, it will convert into the coke, and it is a much better fuel than coal. कोल से ज्यादा better fuel है. Since it is a better fuel than coal, that's why it is used in the manufacture of the steel also, and it contains almost 99% of carbon. 99% इसके अंदर carbon ही present होता है. So it is, we can say that it is the one of the form of the carbon only. कोल के अंदर कार्बन का परसेंटेज 50 से लेकर 95% तक हो सकता है, वेरी कर सकता है अलग अलग टाइप के कोल में. इन कोक के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 100%. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोल. कोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों चैप्टर जो है कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि कोल बहुत बेसिक नीड है. जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे कोल को यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कोल को यूज किया जाता है, और कई सारे अदर प्रोडक्ट्स जो है कोल से बनाए जा सकते हैं. क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कोक बनाया जा सकता है कोल से, और कोक से हम क्या बना सकते हैं? स्टील बना सकते हैं, और कई सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये कोल का एक बेटर यूज हो गया. और कई कहां पे कोल काम आ सकता है? कोल टार. आप सभी ने कोल टार सुना होगा या फिर देखा जरूर. एक अनप्लीजेंट स्मेल का लिक्विड होता है, एक वेरी वेरी थिक लिक्विड है ना. when there is the construction of the road, जब रोड का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे एक ब्लैक लिक्विड, एक ब्लैक थिक लिक्विड को यूज करते हैं जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लीजेंट होती है. दैट इज बेसिकली कोल टार. वो क्या होता है? कोल टार ही होता है. Okay, and it is also formed from the coal. It is the byproduct of the coal. Coal का ही एक byproduct. So as it is mentioned here, all of you see, it is a black thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of, yes, all of you see, it is a mixture of almost 200 substances, है ना. 200, more than 200 substances का mixture होता है. It is about mixture of about 200 substances. जो कोल टार है, that is obtained from the coal only. उसके अंदर बहुत अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर प्रेजेंट होता है. कोल ही नहीं है, सिर्फ कार्बन ही नहीं है, कोल ही नहीं है. कोल के अलावा और भी कई सारे सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अराउंड 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है. Products obtained from coal tar are used as starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Are you getting my point? तो कोल से हमने क्या बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल कोल्स और कई सारे और मटेरियल मिला के हमने कोल टार बनाया. एंड कोल टार जो है, कोल टार से और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो यू आर सीइंग द इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल इन आवर लाइफ. तो कोल से बना कोल टार, और कोल टार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल्स इंडस्ट्रीज में बनाए जा सकते हैं. ऑल ऑफ यू सी, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है. डाइज है ना, जो कलर करने के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कलर करने के लिए जो काम आता है, उसको हम डाइज बोलते हैं.
ड्रग्स क्या होते हैं? बेसिकली मेडिसिन। जो मेडिसिन होती है उनको हम ड्रग्स के नाम से यूज करते हैं। एक्सप्लोजिव्स, ऑल ऑफ यू नो, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं। परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक का तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं प्लास्टिक का, तो इट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल टार। पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं these all products are made from the coal tar only। कोल टार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ही ये बनाए जाते हैं। और कोल टार किससे बना है? कोल से बना है। तो यू आर सीइंग द, यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल इन योर लाइफ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ, एवरी डे टू डे लाइफ में, वो कोल से बनी हुई होती हैं, उनके बाय कहीं ना कहीं वो कोल से लिंक्ड होती है। Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar। जो naphthalene के जो balls होते हैं जिनसे हम जो है moths या फिर दूसरे insects को repel करने के लिए यूज करते हैं ना, वो भी किससे बनाए जाते हैं? कोल टार से बनाए जाते हैं। Now, these days, nowadays, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि जब हम रोड वगैरह बनाते हैं तो वहां पे एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड यूज करते हैं जिसे हम डामर बोलते हैं, है ना। डामर को यूज करके हम रोड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बट नाउअडेज, क्योंकि उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रेजेंट है, नाउअडेज पेट्रोलियम का एक बाय प्रोडक्ट है बिट्यूमिन। बिट्यूमिन इज यूज्ड फॉर मेटलिंग और लेवलिंग द रोड्स की जो मेटलिंग है उसकी जो लेवलिंग है उसके लिए हम बिट्यूमिन को यूज करते हैं, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अर्लियर, पहले के टाइम में हम क्या यूज करते थे? कोल टार यूज करते थे। ओके, अब अभी भी इंडिया में कई ऐसी जगह है जहां पर जो रोड्स बनती है, जहां पर जो रोड्स हैं जनरली ज्यादा यूज नहीं हो रही हैं, ज्यादा हैवी व्हीकल्स का लोड नहीं उनको जो है सफर करना पड़ता है, तो ऐसे रोड्स के लिए जो है हम कौन सा जो है कोल टार ही यूज करते हैं। लेकिन जनरली जो हाईवेज होते हैं, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो दूसरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को या फिर स्टेट्स को लिंक करते हैं, फॉर उनके मैन्युफैक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिट्यूमिन यूज करते हैं, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। नाउ सी वन मोर बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल का एक और बाय प्रोडक्ट है, क्या है? कोल गैस। क्या प्रोडक्ट है बेटा? कोल गैस। ऑल ऑफ यू सी, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। बहुत सिंपल सा टर्म है। अगर आप कोल से कोक बना रहे हैं ना, सपोज दिस इज कोल एंड दिस इज कोक। कोल से जब आप कोक बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा, और वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। You have to heat the coal for long duration to convert into the coke. And during this process, इस process के दौरान, during this process, lots of gases are released. Lots of gases are released, which are released from the coal. There are certain gases which are released from the coal. Those gases which are released during this process, जब हम कोल से कोक का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कोल से कई सारी गैसेस रिलीज आउट होती हैं। उन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं? Those gases are known as कोल गैस। उन्हीं गैसेस को हम क्या बोलते हैं? कोल गैस बोलते हैं। एंड कोल गैस के यूजेस क्या होंगे? सिंपल है, कोल गैस आर यूज्ड एज फ्यूल्स, है ना, फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में हीट ऑब्जेक्ट्स को हीट करने के लिए कोल गैस जो है यूज की जाती है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ गैसियस फ्यूल के फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ यू सी, लेट्स सी, वहां यहाँ देखते हैं हमें क्या मेंशन किया हुआ है कोल गैस के बारे में। ऑल ऑफ यू सी, coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। कोल गैस के बारे में यहाँ पे ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820। Nowadays it is used as a source of heat rather than light। So coal gas is the source of light as well as heat, दोनों का ही source है। तो पहले जो है अर्लियर टाइम्स में इट वाज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, बट नाउअडेज इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ लाइट,
लाइट कम प्रोड्यूस करता है, हीट ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई कोल गैस को हम किसके फॉर्म में यूज कर सकते हैं, हीट के रिसोर्स या हीट के सोर्स की फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी इज पेट्रोलियम। तो ऑल ऑफ यू सी स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का जो नेम है दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के थ्रू हमें समझनी चाहिए, वी हैव अंडरस्टूड दोस इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू टॉपिक दैट इज पेट्रोलियम। लेकिन देयर इज वन कॉमन पॉइंट बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम। मैंने बताया था आपको, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि देयर इज वन कॉमन थिंग बिटवीन कोल एंड पेट्रोलियम, दैट कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉसिल्स। जब एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो जाती है, जो एनिमल्स और प्लांट की डेथ हो गई है मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, उनकी बॉडी से ही कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। प्लांट्स की बॉडी से फॉर्मेशन होता है कोल का, और जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जो ओशन के एनिमल्स होते हैं, जो सी में पाए जाने वाले जो फिशेस हैं, जो एनिमल्स वहां प्रेजेंट है सी के अंदर, उनकी बॉडी से क्या क्या सोर्स मिलता है, उनकी बॉडी से जो फ्यूल ऑब्टेन होगा दैट इज पेट्रोलियम। उनके बॉडी से जो फ्यूल ऑब्टेन होगा दैट इज पेट्रोलियम। इसको भी बनने में वही है, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। इसका प्रोसेस भी लगभग सिमिलर है ना, इसका प्रोसेस भी लगभग सिमिलर है। जैसे कोल जो है कैसे बनता है कि जब प्लांट की डेथ हो जाती है तो देन उसके ऊपर सॉइल्स की लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और सॉइल की लेयर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे सॉइल की लेयर और ज्यादा जो है सॉइल की लेयरिंग उसके ऊपर हो जाती है, जिसके कारण उसकी बॉडी है डीप एंड डीप बरीड हो जाती है। जैसे जितना डीप बरीड होगी उतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होगा। More temperature and pressure will convert the carbon present in the body of the plants into the coal. Similarly, petroleum में भी same ही concept है, same concept है। बस यहाँ पे plants की जगह पर क्या यूज करने होते हैं, marine animals। जो animals जो सी में पाए जाते हैं, fishes जो सी में प्रेजेंट होती हैं, वो जो animals होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन होता है that is converted into the petroleum। किसमें कन्वर्ट होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम इज अ लिक्विड, इट इज अ थिक लिक्विड एंड दैट इज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। जितने भी हम फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे आपने कुछ फ्यूल्स के नाम सुने होंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, है ना। वैसलीन हम जो पेट्रोलियम जेली होती है दैट इज आल्सो पेट्रोलियम जेली। एलपीजी, सीएनजी जो नेचुरल गैसेस है, these all are obtained from the petroleum gas, है ना। पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किए जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई रिपीट, जितने भी फ्यूल्स हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, है ना, गैसोलीन, वैसलीन, या फिर नेचुरल गैसेस लाइक सीएनजी, एलपीजी, these all are obtained from the petroleum only। पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन किया जाता है इनको। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, सर पेट्रोलियम से कैसे ऑब्टेन करते हैं। सो पेट्रोलियम का एक प्रोसेस किया जाता है, दैट नेम ऑफ द प्रोसेस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई एम राइटिंग इट ऑन योर स्क्रीन, द स्पेलिंग ऑफ द टर्म इज, आई एम राइटिंग ऑन योर स्क्रीन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है प्रोसेस? इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं। पेट्रोलियम से अलग अलग फ्यूल्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है उनको ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा जो प्रोसेस है वो कहाँ किया जाता है, ये रिफाइनरी होती है, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज होती है, रिफाइनिंग का प्रोसेस किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Yes, all of you see, I'm starting the reading of this petroleum topic. I hope all of you are getting my audio properly. Petroleum, you know that
Petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. Are you getting my point? तो ये जितने भी जो पेट्रोल और डीजल है कहां से ऑब्टेन करते हैं? We obtain from the petroleum only. The word petroleum is derived from petra and oleum. देखो पेट्रोलियम जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेट्रा एंड ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. यानी कि जो ये पेट्रा जो ये रॉक है, रॉक के बीच में से इसको ऑब्टेन किया जाता है. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स. अब बोलेंगे सर रॉक्स कैसे? जो सी है, सी के अंदर जितने भी जो सी के जो मरीन एनिमल्स है, जब उनकी डेथ हो गई, दे आर बरीड अंडर द सॉइल. उनके ऊपर सॉइल की लेयरिंग का फॉर्मेशन होता गया, और जैसे जैसे उनकी बॉडी जितनी ज्यादा डीप बरीड होगी उतना ज्यादा उनके बॉडी को प्रेशर अप्लाई होगा, टेम्परेचर अप्लाई होगा, ड्यू टू विच द सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स आल्सो. सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स आल्सो. जनरली जो पेट्रोलियम जो फ्लूइड है ना, एक लिक्विड जो है, सॉइल की लेयर के बीच में नहीं मिलेगा आपको. इट इज फाउंड बिटवीन द रॉक्स. रॉक्स की जो दो लेयर होंगी उनके बीच में अगर जगह खाली रह गई है, वहां पे जगह प्रेजेंट है, स्पेस, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, वहां पर आपको पेट्रोलियम के स्टॉक्स मिलेंगे, वहां पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा. क्योंकि सॉइल के अंदर पेट्रोलियम तो इजीली जो है उसमें जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा ना. सो पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स. रॉक्स की जो लेयर होती है उनके बीच में खाली जगह होती है, वहां से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा. पेट्रा का मीनिंग है रॉक और ओलियम का मीनिंग क्या है? ऑयल. तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, the word petroleum is derived from petra rock and oleum oil as it is mined from between the rocks under the earth as shown in figure 5.4. एक फिगर आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, as you can see in your books also. All of you see the figure. आपको ये दिख रहे हैं रिजर्वायर्स, यहाँ पे जो पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स दिए हुए हैं, all of you can see. पेट्रोलियम के जो ये देखो, ये इम्प्रीवियस रॉक, यहाँ पे रॉक की लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर रॉक की लेयर प्रेजेंट है ना. यहाँ पे जो है रॉक की लेयर प्रेजेंट है और ये भी रॉक की लेयर प्रेजेंट है. दो रॉक की लेयर्स के बीच में देखो ये क्या प्रेजेंट है? पेट्रोलियम. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पेट्रोलियम प्रेजेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई अगेन रिपीट, ये देखो एक रॉक की लेयर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और एक रॉक की लेयर नीचे की तरफ प्रेजेंट है. इन दोनों रॉक की लेयर के बीच में ये जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज पेट्रोलियम. इसको हम क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम. ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? गैस. क्योंकि गैस क्या होती है? बहुत लाइट वेट होती है, बहुत हल्की होती है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो नेचुरल गैस थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा. और ऑयल कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑयल उसके नीचे प्रेजेंट होगा. और ऑयल के नीचे क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल से भी क्या होती है? ज्यादा होती है. तो देखो यहाँ पे जो रॉक्स के जो रिजर्वायर्स हैं, यानी ऊपर रॉक प्रेजेंट है, नीचे रॉक प्रेजेंट है, इनके बीच में देखो सबसे पहले वाटर की एक लेयर है. वाटर की लेयर के ऊपर ये जो ऑयल है, किसी ऑयल को हम बोलते हैं पेट्रोलियम. इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेट्रोलियम बोलते हैं. एंड सिमिलरली उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है. अब सपोज हमने कोई मशीन, वी हैव यूज सम मशीनरीज, है ना, हमने कुछ मशीनरीज यूज करी और ये पता लगा लिया कि इस जगह पर यहाँ पर पेट्रोलियम है, यहाँ पर पेट्रोलियम है. तो हम क्या करेंगे? हम जो है इस तरह से ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत जो है लेंथ, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो, ऐसे लॉन्ग जो पाइपलाइंस हैं, इन पाइपलाइंस को इस तरह से अर्थ के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे मशीन्स की हेल्प से. बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प से इन बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को जो है उसके अंदर जो है एंटर करवाया जाएगा, और फिर बड़े से मोटर पंप की हेल्प से उस गैस को और उस ऑयल को बाहर निकालेंगे. इस तरह से पेट्रोलियम को और नेचुरल गैसेस, ये जो गैस है ये नेचुरल गैस है, इसी से सीएनजी और एलपीजी बनाए जाते हैं. और ये जो ऑयल है इट इज पेट्रोलियम. इससे जो एलपीजी, जो अपने पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब बनाए जाते हैं. ठीक है ना? तो आप देख लो. आप आई होप आप सब सभी को ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ गया होगा ना. रॉक्स के बीच में प्रेजेंट है ये, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेट्रोलियम, present between the layers of the rocks, and according to the density they are distinguished from each other. एक दूसरे मिक्स नहीं होते हैं. मिक्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है.
गैस की डेंसिटी सबसे कम है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है। ऑयल की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए आपस में मिक्स नहीं होंगे, ये इमिसिबल लिक्विड्स है। और ये वेल क्यों लिखा हुआ है ना? सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया और जो ये अरब कंट्रीज होती है, दुबई वगैरह है ना, और जो जिसे हम बोलते हैं एमिरेट्स होते हैं ना, जो ये यूएई जो है, यूएई जो कंट्रीज है, दुबई जो कंट्रीज, सऊदी अरेबिया जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज में ऑयल के बहुत अच्छे स्टॉक्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल वहां प्रेजेंट है। तो आपने कभी कभी ना कभी जरूर सुना होगा तेल के कुएं होते हैं ना, तो तेल के कुएं बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पाइपलाइंस को अर्थ के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनकी हेल्प से ऑयल को मोटर की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। दीज आर नोन एज ऑयल वेल्स, दीज आर नोन एज ऑयल वेल्स, या फिर तेल के कुएं को मेंशन करते हैं। Got it? Yes, so all of you see. Yes. Do you know how petroleum is formed? Petroleum was formed from the organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. तो जब जो सी में जो रहने वाले एनिमल्स है, जिनकी जब डेथ होती है, उनकी बॉडीज जो है सी के अंदर ही रह जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वहां पर, and their bodies get buried into the layers of the sand and the clay, and over millions of years, बहुत ज्यादा टाइम लगने के बाद में क्या होता है, and the absence of the air, over the millions of year, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, प्लस absence of air, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, लेयर के अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है, absence of air, high temperature and high pressure, absence of air, high temperature, high pressure, इन सब के कारण क्या होता है कि जो सी के जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो बॉडी में जो कार्बन है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम. द कार्बन ट्रांसफॉर्म्ड इन डेड ऑर्गेनिज्म इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is about that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA, 1859. सबसे जो पहला पूरे वर्ल्ड में सबसे जो पहला जो ये ऑयल का जो वेल ड्रिल किया गया था, वो कहां ड्रिल किया गया था? यूएसए में, पेनिसिल्वेनिया में, in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, Hai, and in the river basins of Godavari and Krishna. So, do you see any point common between Assam, Gujarat, and Mumbai? Is there any point common between Assam, Gujarat, and Mumbai? These all are the coastal areas. तो पेट्रोलियम जनरली कहाँ ऑब्टेन होता है बच्चों? पेट्रोलियम हमें जनरली कहाँ से ऑब्टेन होगा? We obtain the petroleum from the coastal areas, जैसे आसाम है, गुजरात है, मुंबई है, सभी कोस्टल एरियाज है. तो कोस्टल एरियाज में क्या प्रेजेंट होगा? सी प्रेजेंट होगा. सी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एनिमल्स प्रेजेंट होंगे. तो जो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो एनिमल्स डेथ हो चुकी है, उन्हीं से तो पेट्रोलियम बनता है. Are you getting my point? So this is it for today. I hope you enjoyed the session, and you got it, which I tried to make it understand. Thank you, students.